Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. Good morning. So today we will start with a new topic. So today we will do uniform continuity. So what was the definition of continuity? Continuous function on some interval A. Let A be some subset of R. F be a function from A to R. Then F is said to be continuous and on A if what was the definition? If for each C belonging to A and epsilon greater than 0. C पे भी होना चाहिए ना, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए. So F should be continuous at each point of A. So for each C belonging to A and epsilon greater than 0, there exists delta, and this delta depends on this epsilon as well as the point we are considering. Okay, ये था ना, ये C पे भी डिपेंड करता था और एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करता था. हमने कई जगह डेल्टा को क्या लिया हुआ है, इस तरह कुछ लिया हुआ है ना, एप्सिलॉन 1+2c, ऐसी कुछ चीजें ली हुई हैं. सो ये डेल्टा जो है एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करता था, सी पे भी डिपेंड करता था, राइट. So there exists delta greater than 0 such that 0 such that x minus c less than delta implies fx minus fc is less than epsilon. So this was the definition of continuity. Definition of continuity. So here our this delta this depends on epsilon and point C, right? ये होती थी definition of continuity on some domain. So uniform continuity में क्या होता है ना, uniform continuity, a function is said to be uniformly continuous on some domain if this delta depends only on epsilon. It does not depend on the point we are considering. Okay, so इसीलिए उसका नाम भी यूनिफॉर्मली है कि मतलब हर जगह ही सेम तरह से है, ठीक है ना. Uniformly continuous means कि when we will find this delta, then this delta should depend only on the epsilon, not on the point that is under consideration. So it should be independent of the points. Okay, so let us write the definition. Let A be some subset of R, F be a function from A to R. We say that F is uniformly continuous on A if for each epsilon greater than 0 there exists delta. So this depends only on epsilon. So delta greater than 0. So depends only on epsilon. Okay, this there exists delta greater than 0 so that if for says that for any xy belonging to A, x minus y less than delta implies fx minus fy is less than epsilon. ठीक है.
सो कोई भी दो पॉइंट लेंगे जिनका डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग इमेजेस का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। सच उस फंक्शन को हम यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे बस ये क्या चेंज आया, यहाँ पे दिस डेल्टा इज independent of the point we are considering. So this delta is depending only on epsilon. So कोई भी epsilon उठाएंगे उसके corresponding डेल्टा मिल जाएगा such that कोई भी दो पॉइंट उठाएंगे हम डोमेन के अंदर, पहले हम एक पॉइंट को फिक्स करके उसके अराउंड के पॉइंट्स ले रहे थे। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस में क्या है, कोई भी दो पॉइंट्स उठाएंगे हम विद डिस्टेंस एट मोस्ट डेल्टा, तो उनकी इमेजेस का डिस्टेंस भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। सो इज द डेफिनेशन क्लियर टू एवरीवन? डेफिनेशन क्लियर है? सो ग्राफिकली इनका क्या प्रॉब्लम होता है, मतलब इसका मतलब क्या है ग्राफिकली? सो लेट अस सी दैट। ठीक है, सपोज ये फंक्शन है हमारा, एक फंक्शन ये है, ये पॉइंट ए है, so this is point A, this is point B, so function is defined like this। ठीक है, so this function is uniformly continuous। क्योंकि हमें कोई भी एप्सिलॉन दिया होगा तो हम एक डेल्टा फाइंड कर पाएंगे किसी भी पॉइंट के अराउंड सच दैट उनके बीच में लेंगे तो वो हो जाएगा। जैसे कोई भी है, जैसे एप्सिलॉन ले लिया हमने इक्वल टू 1/, इसको 1 कर दो, इसको 1 कर दो, इसको 5 कर दो, ठीक है, और ये कर दो तुम 1 2 3 4 5, ठीक है। सो ये हमारा फंक्शन हो गया फ्रॉम डिफाइंड ऑन 1 to 5, इस तरह से डिफाइंड है, ये एफ हो गया हमारा, दिस इज अवर एफ। तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि हम एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 लिया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई डेल्टा बताओ, सो दैट इसमें हम हमेशा उसमें कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसके अराउंड वो आ जाएगा। देखो यहाँ पे हाफ का, यहाँ पे जैसे ये है, यहाँ पे ज्यादा जंप है इस एरिया में, जैसे ये एरिया है तो यहाँ पे कम राइज है, ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा डेल्टा भी काम करेगा, यहाँ पे ज्यादा राइज है इस एरिया में और इस एरिया में भी शार्प राइज है, ठीक है, ठीक है, ये दिख रहा है ना इतना सबको कि जो इस एरिया में है कम राइज है, यहाँ पे ज्यादा राइज है, यहाँ पे ज्यादा राइज है, तो जितना ज्यादा राइज वाला एरिया है उनका अगर डेल्टा ले लेंगे, जिनका वो उनकी इमेजेस 1/2 के बीच में आएगी तो वो डेल्टा इसके लिए भी काम कर जाएगा। जैसे सपोज डेल्टा इक्वल टू हम इतना छोटा रीजन ले लेते हैं, ये वाला रीजन ले लेते हैं डेल्टा का, ठीक है, इतना, इस डिस्टेंस को डेल्टा ले लेते, तो इसमें कोई भी पॉइंट होंगे, जैसे इसके अंदर कोई भी पॉइंट लिया हमने इन दोनों के अंदर, तो उनका आगे इसके अंदर 1/2 से तो छोटा ही है, ये आ रहा है ना इसका, ठीक है, इसके अंदर कोई भी पॉइंट्स लेंगे जो इनका डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है तो वो उनका डिस्टेंस ऐसे आएगा, जैसे ये x हो गया, ये y हो गया, तो x - y लेस देन डेल्टा लिया, तो इस इतने डिस्टेंस को मैंने डेल्टा बोला है, ठीक है। सो वो ये हाफ से छोटा ही है, इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन हाफ से छोटा है ना, इन दोनों पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो हाफ से छोटा है। अब यही मैं अगर यहाँ पे लूंगा तो इसका क्या आ जाएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, ये आ गए तुम्हारे, दिख रहा है ना सबको? ये बिल्कुल छोटा सा और रीजन, और छोटा रीजन हो गया है ना, और यहाँ पे भी ये डेल्टा ये काम कर रहा है। तो जब भी हमारा ऐसा होगा ना, जो अगर फंक्शन जो है बाउंडेड रीजन में कंटिन्यूअस है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा ही, क्योंकि हम अपने डेल्टा को सबसे बड़े जिसमें सबसे ज्यादा राइज है उस वाले पोर्शन को चूज करके उसमें डेल्टा चूज कर लेंगे, तो वो डेल्टा पूरे
इंटरवल पे काम करेगा। कहीं भी कोई भी ले लो तुम डेल्टा, कोई भी एरिया ले लो इसमें, तो इतना पोर्शन काम कर जाएगा एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ के लिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एक बार यस नो बोल दो। देखो हमें क्या करना है, इसके अराउंड एक रीजन फाइंड करना, मतलब ऐसा डेल्टा फाइंड करना है कि हम मैं कोई भी 2 पॉइंट उठाऊं ना। जैसे मैं ये मिटा देता हूँ पहले पर, एक बार मिटा दूंगा। ठीक है, सपोज मैंने एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 लिया है, ये एफ है, मेरे को डेल्टा फाइंड करना है। अगर मैं डेल्टा इक्वल टू जैसे लेता हूँ, हाफ लेता हूँ, डेल्टा इक्वल टू हाफ, तो ये काम करेगा इसके लिए क्या? डेल्टा इक्वल टू हाफ मतलब जैसे अगर ये दोनों पॉइंट ले लिए, ये 7.5 है और ये 8 है, ठीक है, तो इसकी इमेज कहाँ जाएगी? 7.5 तुम्हारे यहाँ पे है, ये ऑलमोस्ट 4 पे आ गया, ठीक है, और 8 जो है तुम्हारा ये रहा, वो 6 पे आ गया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? ऑलमोस्ट 2 का, विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन एप्सिलॉन, है ना। एफ ऑफ 7.5 माइनस एफ ऑफ 8, ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, so this delta will not work। लेकिन ये डेल्टा इस रीजन में काम कर रहा होता, जैसे अगर मैं यहाँ पे लेता, इस रीजन में लेता, जैसे 4.5 लेता, एफ ऑफ 4.5 क्या होगा यहाँ पे? एफ ऑफ 4.5 देखो, जैसे ये है, ये एफ ऑफ 4.5 है, तो यहाँ पे जो है ये 3.2 मान लो इसे, और ये 5 है, तो एफ ऑफ 5 क्या है? ये भी ऑलमोस्ट वही है, सो 3.3 मान लो एफ ऑफ, सो ये 3.5 है और ये 3.2 है, और ये एफ ऑफ 5 3.3 है, so इनका डिफरेंस क्या हो गया? इनका डिफरेंस क्या आ गया बताओ? 0.1 विच इज लेस देन 1/2 जो एप्सिलॉन है हमारा। तो इतने रीजन में अगर देखो तुम यहाँ पे, क्योंकि कम फंक्शन में राइज है, तो इतने रीजन में तो एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ काम कर रहा है, वो डेल्टा इक्वल टू हाफ। लेकिन जैसे इस रीजन में बहुत ज्यादा राइज है, तो इस रीजन में काम नहीं कर रहा, और इस रीजन में भी क्योंकि बहुत ज्यादा राइज है तो इसमें भी काम नहीं करेगा, राइट? अब समझ आ रहा है? अभी तक का समझ में आया? ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस नहीं है। नहीं, डेल्टा इक्वल टू 1/2 नहीं काम कर रहा ना, और तो काम कर सकता है। अभी मैं समझा रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, देखो मैं ये क्या बेटा? प्राइस और मतलब स्टीप राइज जो हो रहे हैं, हाँ, वैसे ही डेल्टा सिलेक्ट करें पूरे ग्राफ के लिए जो स्टीप राइज पे काम कर रहे हैं, हाँ, तो वो काम कर जाएगा।
वो काम कर जाएगा। वही मैं समझा रहा हूँ कि जो जैसे हमारे यहाँ कहाँ पे स्टीप प्राइस है, यहाँ पे स्टीप प्राइस है, ठीक है, फिर यहाँ पे स्टीप प्राइस है, तो जो डेल्टा इसमें काम करेगा वो पूरे इंटरवल में काम कर जाएगा। लेकिन अगर जैसे हम इसमें डेल्टा वाला चूज करते तो वो इसमें ना भी काम करता है स्टीप प्राइस वाले पोर्शन में। तो हमारे पास ये दो स्टीप प्राइस के पोर्शन है, तो इसमें अगर हम डेल्टा ले लेंगे तो काम कर जाएगा। तो जो इसके लिए काम करेगा वो इसके लिए भी पूरे इंटरवल के लिए काम कर जाएगा। लेकिन हमें दिख रहा है कि हमें मिल जाएगा डेल्टा एक ऐसा, लेकिन हम बहुत छोटा इंटरवल ले लेंगे, हम ऐसा कुछ ले लेंगे इतना छोटा इंटरवल, तो वो इसमें भी काम कर जाएगा और इधर भी काम कर जाएगा, पूरे में काम कर जाएगा। तो डेल्टा में बहुत छोटा लेना पड़ेगा, वो डिपेंडिंग ऑन कितना स्टीप प्राइस है, लेकिन यहाँ पे हमें मिल जाएगा, राइट। तो क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पता है कि जो राइज है वो हमें पता है कि कितना राइज है, कितना स्टीप राइज है, ठीक है ना। सो दिस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, क्योंकि जो स्टीप राइज को हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि इसमें हम डेल्टा चूज कर सकते हैं। फिर भी हम बहुत ही छोटा डेल्टा ले लेंगे, ऐसा कुछ ले लेंगे जो इसमें आ जाए, इसमें कोई भी पॉइंट उठाएंगे तो वो हमारे हाफ से छोटा हो जाएगा। समझ आ रहा है? ये समझ आया? यहां तक का क्लियर है सबको कि अगर हम स्टीप प्राइस का डेल्टा चूज करते हैं तो वो पूरे उसमें काम कर जाएगा, पूरे डोमेन में। जैसे डेल्टा इक्वल टू यहाँ पे हम अगर ले लें डेल्टा इक्वल टू 1/100 ले लें, तो दिस डेल्टा माइट वर्क इन दिस केस, ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटा हो जाएगा, फिर ये मिल जाएंगे हमें पॉइंट्स, राइट। वो तो डिपेंड करेगा फंक्शन कौन सा है हमारा, लेकिन मैं ये समझाने जा रहा हूँ कि इस तरह का यार 1/1000 या 1/10,000 इस तरह का डेल्टा अगर लेंगे तो ये बहुत ही हमें पूरे डोमेन में काम कर जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह का डेल्टा फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ, उससे छोटा एप्सिलॉन लेंगे तो और छोटा डेल्टा ले सकते हैं, बट वी आर श्योर दैट वी विल गेट सम डेल्टा सच दैट वो इससे छोटा हो जाए। fx माइनस fy अगर हम डोमेन में कहीं भी लेते हैं तो वो हमारा लेस देन 1/2 आ जाएगा फॉर दिस डेल्टा, राइट। तो हम इतना छोटा अगर डेल्टा कर दें तो हमारा ये स्टीप प्राइस में भी कंट्रोल हो जाएगा। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, अब जैसे अगर फंक्शन जो है हमारा जैसे 1/x है, जैसे 1/x है, दिस फंक्शन, ठीक है। तो इसका स्टीप प्राइस जो है ना, यहाँ पे स्टीप प्राइस तो है, बट ये स्टीप प्राइस जो है ये अनबाउंडेड है। तो हम अगर एप्सिलॉन को छोटा करते जाएंगे तो हमें कई बार डेल्टा मिलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये स्टीप प्राइस जो है यहाँ पे कंट्रोल में नहीं है। अगर ये 0 से मैं कुछ भी इंटरवल लूँ या 0 से इन्फिनिटी लूँ तो इसमें ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। Why? Because this steep rise is not in our control, ठीक है। तो fx इक्वल टू 1/x is not uniformly continuous on 0 to कोई भी b, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी, तो 0 होना चाहिए, क्योंकि अब ये बाउंडेड नहीं है तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। इस क्योंकि ये स्टीप प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगा जैसे जैसे हम 0 के क्लोज जाएंगे, स्टीप प्राइस विल नॉट बी इन आवर कंट्रोल, हम ऐसा डेल्टा नहीं चूज कर पाएंगे। जैसे पिछले केस में तो यहाँ पे क्योंकि ये बाउंडेड था तो हमें पता है कि इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो ये स्टीप प्राइस हमारे कंट्रोल में है, ये स्टीप प्राइस हमारे कंट्रोल में है। लेकिन 1/x के केस में ये स्टीप प्राइस हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये बहुत बहुत ही ज्यादा वो स्टीप हो जाएगा जैसे जैसे हम 0 के क्लोज जाते जाएंगे। ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाता है इसके इस लाइन के ये y एक्सिस के पूरा पैरेलल हो जाता है, तो बहुत ज्यादा स्टीप हो जाता है, तो वहां पे हम डेल्टा नहीं चूज कर पाएंगे। क्लियर? अभी एग्जांपल करेंगे तो और समझ में आएगा। मतलब ये है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस मतलब पूरे इंटरवल पे होना चाहिए, एक ही डेल्टा काम करना चाहिए पूरे इंटरवल पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू 1/2 इतने एरिया में तो काम कर रहा था, इस एरिया में तो काम कर रहा था, लेकिन इन दोनों एरियाज में काम नहीं करता, तो इसलिए डेल्टा इक्वल टू 1/2 यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस के केस में नहीं करेगा काम। लेकिन हमें पता है कि हम ऐसा एक डेल्टा चूज कर सकते हैं जैसे इसमें काम कर जाए पूरे डोमेन में,
और 1/x के केस में नहीं कर पाएंगे। तो ये मैं अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर होगा तुम्हें, बट ये डेफिनेशन याद रखना कि हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड some delta which only depends on epsilon. It should not depend on any point. It should be independent of the point. ठीक है? So 1/x जो है fx equal to 1/x is continuous on 0 to b. It is. अभी देखेंगे पूरा, अभी बाय डेफिनेशन प्रूव करेंगे कि ये क्यों नहीं है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ठीक है, अभी मैं बस ये बता रहा हूँ क्योंकि इसमें स्टीप राइज हमारे कंट्रोल में नहीं है। जहाँ पे भी स्टीप राइज है लेकिन वो तुम्हारे कंट्रोल में है, दैट इज बाउंडेड, दैट स्टीप राइज इज बाउंडेड, ऊपर से बाउंड है उसका, तो उसमें यू कैन इजिली से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बट अगर तुम्हारा स्टीप राइज बाउंडेड नहीं है, जैसे कि 1/x केस में हो गया या 1/x-1 के केस में, जहां पे भी इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, एसिम्प्टोमेटिकली इनफाइनाइट हो रहा है, तो वहां पे तुम्हारा ये कंट्रोल में नहीं आएगा। क्लियर? ओके, सो लेट अस डू सम, पहले एक क्राइटेरिया लिखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म क्राइटेरिया। So this is the non-uniform criteria. It is similar to sequential criteria. एक बार इसे रीड करो फिर मैं समझाता हूँ इसे। So यहाँ पे क्या है, f is not uniformly continuous on A if and only if there exists an epsilon, क्योंकि वो नेगेट कर रहे हैं बस डेफिनेशन को। तो वहाँ पे क्या है, for each epsilon there should be some delta. So यहाँ पे for there exists epsilon, so that for any delta there we will be able to find 2 points in A such that the points are at distance at node delta but their images are at distance greater than epsilon naught. So just we are negating the definition of uniformly continuous. तो ये तो by negation ही आ जाएगा, ये दोनों क्या है, they are by negation. This is just rewriting the definition of uniformly continuous. फिर next है ये sequential criteria से आ रहा है, if there exists an epsilon naught greater than 0 and two sequences xn and un in A such that limit xn minus un is 0, मतलब कि दो पॉइंट्स के लिमिट्स कन्वर्ज कर रही हैं बट देयर कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंसेस, उनके इमेजेस वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट है। सो लेट अस राइट इट्स प्रूफ। So 1 implies 2. We will prove this that, okay, so we shall prove 1 implies 2. So given is f is not uniformly continuous on A, and then this is by definition. So given f is not uniformly, लाइट है ना ज्यादा, continuous on A, so then ये देखो ये डेफिनेशन क्या थी हमारी, इसको नेगेट करना है बस हमें। So we say that f is uniformly continuous on A if for each की जगह there exists हो जाएगा there exists, and there exists की जगह for every and for any की जगह there exists xy such that x minus y is less than delta but fx minus fy is greater than epsilon naught. So this is just, ठीक है, just a negation of, so this is just a negation of the definition of uniformly continuous function. So from definition of uniformly continuous function, it is clear that there exists epsilon naught greater than 0 such that for each delta greater than 0 there exist points x delta y delta in A such that x delta minus y delta is less than delta but fx delta minus fy delta is greater than. Hence
2 is satisfied. So किसी को कोई doubt? We have just negated the definition of uniformly continuous function. Okay, so let us move to the second part. So we will now show second implies third. Second implies third. So we have assumed that there exists epsilon naught. So given is there exists epsilon naught greater than 0 such that for each delta greater than 0 there exists x delta y delta in A such that x delta minus y delta is less than delta, but fx delta minus fy delta is greater than epsilon naught. अब हमें एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करनी है. सीक्वेंस कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? इससे हमें ये शो करना है ना कि देयर एग्जिस्ट सीक्वेंसेस xn and un. सो कैसे आएंगी? यहां से हम क्या करते हैं, फॉर ईच डेल्टा की जगह हम क्या करते हैं, इन पर्टिकुलर, सो फॉर ईच n बिलोंगिंग टू n हम क्या करते हैं, डेल्टा को देयर एग्जिस्ट xn yn बिलोंगिंग टू a, ठीक है ना. सो डेल्टा n इक्वल टू 1/n के लिए देयर विल एग्जिस्ट xn and yn बिलोंगिंग टू a such that xn minus yn is less than 1/n, but fxn minus fyn is greater than equal to epsilon naught. So हमारे पास दो सीक्वेंसेस आ गए xn and yn. अब बस हमें ये शो करना है कि xn और yn इसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं. तो क्या एक्स्ट्रा कंडीशन हमें चाहिए? बस हमें ये शो करना है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn minus yn is equal to 0. और वो क्यों होगा बताओ? Since xn minus yn is less than 1/n for all n belonging to n, so this implies limit n tends to infinity xn minus yn, या इसको ब्रैकेट, is equal to 0, right? Thus we have shown existence of two sequences xn and yn in A such that limit n tends to infinity xn minus yn is 0, but fxn minus fyn is greater than equal to epsilon naught for all n belonging to n. यही शो कर दिया हमने, है ना, और यही शो करना था. Hence 3/4. Next we have to show that 3 implies 1. इसको कैसे करेंगे? Given है there exists epsilon naught greater than 0 such that for each delta greater than 0 there exists sequences, there exists delta greater than 0 and two sequences xn and yn, and two sequences xn and yn in A such that limit n tends to infinity xn minus yn is 0 and fxn minus fyn is greater than equal to epsilon naught for all n belonging to n. So ये हमें given है now. We have to show that f is not uniformly continuous on. So क्यों होगा बताओ?
नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन जाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से यूज करना है। लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर। ठीक है, हमें बस शो करना है कि इस डेल्टा के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे सच दैट x माइनस वाई इज लेस देन। सो अब हमें क्या शो करना है? टू शो देयर एग्जिस्ट xy belonging to a such that fx minus fy is greater than equal to epsilon। बस ये शो करना है। ठीक है, फिर काम हो जाएगा कि इस एप्सिलॉन नॉट के लिए हमारे पास कोई भी डेल्टा काम नहीं कर रहा है, बस इतना शो करना है। सो कौन से एक्स वाई होंगे? ये ए के अंदर एक चीज लिखना भूल गए, सच दैट x minus y is less than delta but fx minus fy is greater than equal to epsilon नॉट। बताओ क्यों होगा? कौन सा एक्स वाई लें हम? since limit n tends to infinity xn minus yn is 0, यहां से आएगा 2 पॉइंट्स। for delta greater than 0 there exists m belonging to z positive such that क्या हो जाएगा? xn minus yn minus 0 is less than delta for all n greater than equal to m, that is xn minus yn is less than delta for all n greater than equal to m। so इसको a मान लो या इसको b और पीछे वाले स्टेटमेंट को a। ये a है अपना। ठीक है, this one is a and this one is b। now let x equal to xm and y equal to ym, then from b we have x minus y which is equal to xm minus ym which is less than delta। also from a we have, क्योंकि xm minus ym is less than delta, so fxm minus fym is greater than equal to epsilon, that is fx minus fy is greater than equal to epsilon naught। so thus we are able to find 2 points x and y in a। thus we have shown existence of 2 points x y in a such that x minus y is less than delta but fx minus fy is greater than equal to epsilon। so since delta greater than 0 is arbitrary real number, so f is not uniformly। हर एक डेल्टा फेल हो गया ना, सारे डेल्टा काम नहीं कर रहे। इस एप्सिलॉन नॉट के लिए सारे डेल्टा काम नहीं कर रहे। so we have shown that f is not uniformly continuous on a। क्लियर है सबको? कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। so ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे हम, सीक्वेंस वाला बहुत यूज करेंगे। ठीक है, ये सीक्वेंशियल वाला हम हमेशा 2 सीक्वेंस फाइंड करेंगे x and y n सच दैट वो दोनों का डिफरेंस तो 0 पे जाता है, लेकिन उन दोनों का इमेजेस का डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। क्लियर? प्रूफ इज क्लियर टू एवरीवन? बता। नो? यस सर। ये थर्ड वाला पार्ट एक बार फिर से तो। अच्छा, ये देखो, चलो शुरू से चलो शुरू से ही कर लेते हैं। देखो, पहला तो कुछ नहीं है, फर्स्ट इंप्लाइज टू, तो बाय जस्ट नेगेशन स्टेटमेंट को नेगेट करोगे 1 इंप्लाइज 2 आ जाएगा। सर ये क्राइटेरिया नहीं समझ में आया सर, क्राइटेरिया नहीं समझ में आया सर, क्या करना है? नहीं, अभी देखो
पहला क्या है कि f इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन ए, इसकी डेफिनेशन देखो कंटिन्यूटी के लिए, पहले तो 1 implies 2 देखो बस सिंपली। तो f इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन ए गिवन है तुम्हें, तो बस तुम्हें यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को नेगेट करना है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या थी, यहाँ पे लिख लेते हैं तो तुम्हें यहीं पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, f is uniformly continuous on A if क्या था, for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that for any xy belonging to A, x minus y less than delta implies fx minus fy is greater or less than epsilon। so ये तुम्हारी डेफिनेशन है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। सो हमें ये इसको नेगेट करना है, तो नेगेशन में क्या होगा, यहाँ पे नॉट आ जाएगा, f इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन ए इफ फॉर ईच क्या हो जाएगा हमारा, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन नॉट हो गया, फिर ये फॉर देयर एग्जिस्ट क्या हो जाएगा, फॉर ईच हो जाएगा, राइट, एंड फॉर एनी क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और ये एक्स वाई क्या है, डेल्टा पर डिपेंड करेंगे, तो इसलिए ये एक्स डेल्टा वाई डेल्टा लिख रखा है इन्होंने, सो दैट एक्स डेल्टा, और ये जो है ये फेल हो जाएगा, सो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। तो ये है स्टेटमेंट। अब देखो इसे, सो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, ये बिल्कुल ये पढ़ते रहो यहाँ पे, such that for each delta greater than a there exist points x y, so ये क्योंकि डेल्टा पे डिपेंड करते हैं इसलिए x डेल्टा y डेल्टा इन a such that x डेल्टा minus y डेल्टा is less than delta, तो ये हो गया, but fx minus f is greater than equal to epsilon। so for 1 implies 2 is clear to everyone now, ठीक है, we are just negating the statement, 1 implies 2 is nothing, बस वो rewrite करना है एक तरह से डेफिनेशन को। अब 2 implies 3 देखो, 2 में गिवन क्या है, वी आर गिवन दैट, बेटा रिपीट हो रही है आवाज, अपना माइक म्यूट कर लो एक मिनट। सो वी आर गिवन दैट देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 0 such that for every delta we will be able to find 2 points x delta and y delta in A such that x delta minus y delta is less than delta and fx delta minus fy delta is greater than equal to epsilon naught। सो अब हमें शो क्या करना है कि हमें एक एप्सिलॉन नॉट फाइंड करना है, तो यही वाला एप्सिलॉन नॉट काम कर जाएगा, सच दैट दो सीक्वेंस भी फाइंड करनी है xn एंड un in a सच दैट उनके डिफरेंस की लिमिट 0 पे जा रही है, बट उनके कॉरेस्पॉन्डिंग इमेजेस का डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेकंड इंप्लाइज थर्ड में ये हमें गिवन है, हम क्या करते हैं, क्योंकि फॉर ईच है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार डेल्टा इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो उससे x1 y1 आ जाएगा, फिर डेल्टा इक्वल टू 1/2 ले लेंगे तो उससे x2 y2 आ जाएगा, डेल्टा इक्वल टू 1/3 के लिए x3 y3 आ जाएगा, सो ऑन। सो इसलिए हम क्या कहते हैं, फॉर ईच n बिलोंगिंग टू n डेल्टा n इक्वल टू 1/n लेंगे तो हमें एक xn और yn आ जाएगा a के अंदर, सच दैट xn माइनस yn इज लेस देन 1/n बट fxn माइनस fyn इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। ये बहुत जगह काम करा हुआ है ये बार हमने, ये सीक्वेंस जनरेट करने का। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स थे इसलिए दो सीक्वेंसेस आ रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज हमें एक सीक्वेंस आती थी, तो वही काम है ये बस। फिर क्योंकि xn माइनस yn इज लेस देन 1/n इसलिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn माइनस yn इज 0। सो हमने शो कर दिया दो सीक्वेंसेस xn yn सच दैट उसकी लिमिट 0 है बट fxn माइनस fyn इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। सो कुछ नहीं है, तो सेकंड इंप्लाइज थर्ड भी इजी है, बस डेल्टा n इक्वल टू 1/n लेना है, बस ये मेन काम है और तो कुछ नहीं है। क्लियर है सेकंड इंप्लाइज थर्ड सबको, बोल दो बेटा यस या नो। सो लास्ट इज थर्ड इंप्लाइज 1। सो थर्ड इंप्लाइज 1 में हमें क्या करना है, अब हमें गिवन है कि दो सीक्वेंसेस एग्जिस्ट करती हैं xn yn सच दैट उनका लिमिट जो है 0 पे जाता है बट देयर कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंस बिटवीन देयर इमेजेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर एवरी n, और हमें शो करना है कि f इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। सो हम क्या करेंगे, हमें क्या शो करना होगा कि इस एप्सिलॉन नॉट के लिए कोई भी डेल्टा काम नहीं करेगा। सो हमें ये शो करना है
एक्चुअली हमें सेकेंड ही शो करना है, हमें ये शो करना है कि कोई भी डेल्टा, ये जो है कोई भी डेल्टा काम नहीं कर रहा है, यही शो करना है हमें। थर्ड इम्प्लाइज 2 या थर्ड इम्प्लाइज 1 बात एक ही है। सो हम ये शो कर रहे हैं एक्चुअल में। सो हमने फिर क्या करा, एप्सिलॉन नॉट तो वही ले लिया, हमने कोई भी डेल्टा उठाया। अब हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड 2 पॉइंट्स x y which are less than delta but their corresponding difference is greater than equal to epsilon naught। so वो काम कर रहे हैं। so हमने कोई भी डेल्टा उठाया, we have taken any delta and we are trying to find 2 points x and y in A such that x minus y is less than delta but their corresponding difference is greater than equal to epsilon naught। so उसके लिए हमें क्या करना होगा कि कोई x and y n फाइंड करने होंगे जिनका डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है ना, क्योंकि ये पता है कि ये इसका यूज करना है हमें। तो हमें कोई ऐसे एक्स एन वाई एन फाइंड करने होंगे जिनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा हो। तो वो कैसे आएगा, वो लिमिट की डेफिनेशन से आएगा। तो हमने क्या कहा कि क्योंकि लिमिट जो है 0 है, सो इस डेल्टा के लिए हमें एक m मिल जाएगा। सो एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा ले रहे हैं यहाँ पे, सच दैट एक्स एन माइनस वाई एन इज लेस देन डेल्टा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। सो इन पर्टिकुलर फॉर m है तो हम m के लिए काम कर लेंगे। ठीक है, सो x इक्वल टू एक्स एम ले लिया, y इक्वल टू वाई एम ले लिया, तो हमारे x माइनस वाई लेस देन डेल्टा हो गया और एफ एक्स एम माइनस एफ वाई एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। बस कुछ नहीं करा यहाँ पे, हमने बस ये यूज करा, ये ट्रिक है बस। ये हमने लिमिट यूज कर ली ये पॉइंट्स फाइंड करने के लिए सच दैट ये लेस देन डेल्टा हो जाए। ठीक है, क्लियर? सो दिस प्रूफ इज क्लियर टू एवरीवन? ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो दिस मच इज एनफ फॉर टुडे। इसको ढंग से रीड करना, ढंग से समझना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में वी विल डू अ थ्योरम ऑन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस फंक्शन। फिर मैं एक थ्योरम विदाउट स्टेटमेंट बताऊंगा जिसके थ्रू यू कैन इजीली चेक which functions are continuous or uniformly continuous and which functions are not uniformly continuous। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक चीज रह गई। क्वेश्चन show that fx equal to 1 by x is not uniformly continuous on 0 to b। b कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या 0 to infinity भी ले सकते हो। ठीक है, या a इसको इस तरह से भी ले सकते हो, 0 to infinity भी ले सकते हो या 0 to b कैसे भी ले सकते हो। बेसिकली मेन तो 0 पे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 0 पे देयर इज अ स्टीप राइज। जो हमने देखा था ना, ये फंक्शन हमारा 0 पे स्टीप राइज है। इधर तो चाहे कहीं भी जाते रहो, ये ऑलमोस्ट ये फ्लैट होता जा रहा है, तो ये इसमें तो राइज ही नहीं है, तो ये कंट्रोल में है हमारे हमेशा। ये वाला पोर्शन कंट्रोल में नहीं है, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे स्टीप राइज है। सर इसे अगर प्रूव करें, कोई पॉइंट लें ए, उसके लिए प्रूव करें ए कॉमा बी के लिए, तो फिर सर यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस हो जाएगा। हाँ, अगर क्लोज इंटरवल ए भी लेंगे ना हम, कोई भी, या ए भी अगर ए ग्रेटर देन 0 है कुछ भी, तो हमारा ये प्रूव कर देंगे कि ये यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है उस इंटरवल पे। ठीक है, ये करेंगे आगे। लेकिन अगर 0 ले लिया हमने इंटरवल में तो नहीं यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है। और एक बार आपने लिखा है क्या सर ऊपर आपने एक बार कंटीन्यूअस और एक बार मतलब नॉट यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस लिखा है। ये रहा, ये रहा, ये कह रहे हो ना? हाँ, तो यही तो प्रूव करने जा रहे हैं हम कि इट इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस ऑन 0 to b बट इट इज कंटीन्यूअस। ये तो हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c 1 by x is equal to 1 by c। सो इससे आ ही जाता है कि ये कंटीन्यूअस है फॉर ऑल c नॉट इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो कंटीन्यूअस तो है ही ये, ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू शो इट इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस, नॉट यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस। ठीक है, कंटीन्यूअस हम ऑलरेडी शो कर सकते हैं। सो प्रूफ, लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल यूज नॉन यूनिफॉर्म क्राइटेरिया। सो वी विल फाइंड टू सीक्वेंसेस, ठीक है, सच दैट देयर डिफरेंस कन्वर्जेस टू 0 बट द कॉरेस्पॉन्डिंग इमेजेस इज ग्रेटर देन। सो क्या करेंगे यहाँ पे हम, बताओ? वी विल टेक सीक्वेंस ले लेंगे सर x इक्वल टू xn इक्वल टू 1, let xn equal to 1 by n
और yn क्या लेंगे, कोई ऐसी सीक्वेंस बताओ जिनका डिफरेंस जो है वो 0 हो जाए और इमेजेस वो बन जाए 1/n+1। ठीक है, सो ये दो सीक्वेंसेस ले ली और एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 ले लो। ठीक है, सो एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 ले लिया हमने, xn इक्वल टू 1/n ले लिया, yn इक्वल टू 1/n+1 ले लिया फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। सो xn माइनस yn क्या होगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा 1/n माइनस 1/n+1। सो दिस इज, ये क्या हो जाएगा 1/n/n+1। ठीक है, एंड दिस कन्वर्जेस टू 0, राइट। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn माइनस yn इज 0। सो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, अब हमें बस ये शो करना है कि ये fxn माइनस fyn ग्रेटर देन 1/2 आ जाए। तो fxn क्या है, fxn माइनस fyn क्या होगा, n माइनस which is equal to 1 for all n belonging to n. So this implies fxn minus fyn is greater than 1/2 for all n, which is epsilon, for all n belonging to n. So by discontinuity criteria, by non-uniform क्या नाम है, non-uniform continuity criteria। ठीक है ना, ये एक्सन हम सीक्वेंस क्यों चूज कर पाए, क्योंकि 0 पे 0 है उसके अंदर, अगर 0 नहीं होता तो हम ये सीक्वेंस चूज नहीं कर पाते। ठीक है ना, ये दो सीक्वेंस जो हम चूज कर पा रहे हैं क्योंकि 0 है इंटरवल के अंदर, इसलिए चूज कर पा रहे हैं, नहीं तो हम ये दो सीक्वेंस नहीं चूज कर पाते। कोई भी एक ग्रेटर देन 0 लेंगे तो फिर हम ये सीक्वेंस नहीं एग्जिस्ट करेगा उसके अंदर। ठीक है ना, क्लियर है सबको ये प्रूफ? यस सर। सो हम बाद में शो करेंगे कि f is uniformly continuous on a to b for any a greater than 0। ठीक है, ये ट्राई करके आना, चलो इसे फॉर ठीक है, इसको ट्राई करके आना, शो दैट fx equal to 1/x is uniformly continuous on a to b for any a greater than 0, a less than b। ठीक है, इसको ट्राई करके आना, इस क्वेश्चन को ये ट्राई करना, कोई हर एक एप्सिलॉन के लिए डेल्टा फाइंड करने की। ठीक है, इसको ट्राई करके आना, इसको नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, सब ट्राई करना इसको पक्का, क्योंकि अब ए ले लिया है तो हम वो सीक्वेंस तो ले नहीं पाएंगे, तुम देखोगे कि वी विल बी एबल टू फाइंड अ डेल्टा, क्योंकि अब ए ले लिया है तो कहीं भी ए ले लेंगे तो हम जैसे ए यहाँ पे कहीं पे होगा तो ये स्टीप राइज हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, इसके बाद तो हम डेल्टा चूज कर सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए कोई भी ए सेट कर लेंगे तो उसके बाद स्टीप राइज जो है हमारा बाउंड हो गया तो हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी जो है अगर 0 इंक्लूड कर लेते हैं इंटरवल में, मतलब 0 पे ओपन रख के, तो फिर ये स्टीप राइज हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। समझ आ रहा है सबको? ठीक है ना, तो ये ट्राई करना। अब अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, एक बार अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँ। Okay, so your attendance is downloaded. Now you all can leave. I am ending the meeting now. Okay.